Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are fine. Today we are going to start our fourth chapter, that is chapter number 13, and the name of this chapter is The Decline and Reawakening of the Muslims. In this chapter I will explain you what is the meaning of decline of the Muslim and reawakening of the Muslims. Okay? Here are four key points. The first one, the decline of the Muslim. Decline means zawal, यानी मुसलमानों पे जवाल कैसे आया. The second point is the reawakening of the Muslim, यानी दोबारा मुसलमान क़ुव्वत एक दोबारा किस तरह जागी, दोबारा मुसलमान क़ुव्वत एक किस तरह उनमें दोबारा एक उभार बन के उभरी. And the two names of religious figure who played a great role in the reawakening of the Muslim, and the names are Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shaheed. यानी इन दो रिलीजियस पीपल ने किस तरह मुसलमानों के दिलों में दोबारा इस्लाम को जगाया और मुसलमान जो है वो दोबारा दुनिया में एक क़ुव्वत बन के उभरे. Now I am going to start reading, but you people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult words. Okay? The 19th century was a time, the decline of the Muslim, यानी मुसलमानों का जवाल. The 19th century was a time of the rise of the European powers and the decline of the Muslims throughout Asia and Europe. 19वीं सदी में यूरोपियन ताकत का उरूज एशिया और यूरोप के मुसलमानों के जवाल का वक्त था. In Eastern Europe, the Ottoman Empire यानी सल्तनत उस्मानिया, underline the word Ottoman Empire means सल्तनत उस्मानिया, of the Turks was slowly losing ground. Persia and Egypt too gradually came under Western dominations. Underline the word dominations means गालिबाना. मशरक़ी यूरोप में तुर्की सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही थी. पर्शिया और इजिप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता मगरबी गलबे के ज़ेर असर आ गए. India was already under British control and France had gained control of the Maghreb states, Morocco, Algeria and Tunisia. हिंदुस्तान पहले से ही अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था. फ्रांस के मगरबी ममालिक में अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को भी कब्ज़े में कर लिया. The Muslim countries on the East African coast, Southeast Asia and the Arabian Peninsula को इंटरलाइन करें means जज़ीरा नुमा, were also under European rules. ऐसे ममालिक जो जनूबी मशरिक़ और जनूबी मगरिब के साहिल और अरब जज़ीरे में वाक़ थे वो भी यूरोपीय हुक्मरानी में थे. Okay? These countries were either rich in resources such as Persia, the subcontinent, Southeast Asia and the East Africa countries are politically strategic. The word strategic is difficult, so you have to underline this word, and the meaning of this word is hikmat-e-amli. Like Egypt and Turkey, hence the Western power wanted to control them. ये ममालिक या तो बेपना वसाइल से माला माल थे, जैसे पर्शिया, बर्र-ए-सग़ीर, जनूबी मशरिक़ और मशरिक़ी अफ्रीका के ममालिक, या सियासी हिकमत अमली जैसे मिस्र और तुर्की और मगरबी ताकतें इस पर अपना इख्तियार चाहती थीं. Come to the next paragraph. The chase for worldly power and loss of focus were the main causes for the decline of the Muslim states. The rulers became increasingly despotic. The word despotic underline means muhazzib, with only a few exceptions. मुसलसल सदियों की हुक्मरानी के बाद इस्लामी रियासतें ज़वाल का शिकार थीं, जिसकी वजह से मगरबी ताकतें इन पर गलबा आ गई थीं. दुनियावी ताकत का ताक़ुब और तवज्जो का फुक़दान मुसलमानों के ज़वाल का सबब बना, सिवाय चंद एक के. ज़्यादातर हुक्मरान ज़ालिम और जाबिर थे. The nobility and officials also followed in the footsteps of the rulers. शुर्फ़ और सरकारी अफसरान भी हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलते थे. Education and the quest for knowledge, which had made them dynamic and successful previously, were not given the same importance. As a result, the growth and development of these people slowed down to an alarming extent. तालीम और इल्म की जुस्तजू जिसे माजी में इन्हें मुतहरिक और कामयाब बनाया था, इसे अहमियत न दी गई. तो एज ए रिज़ल्ट तरक्की का अमल आहिस्ता होता गया.
Politically, there were rivalries. Underline the word rivalries means dushmani and corruption which weakened the states, making them dependent on the Europeans who had grown stronger as a result of their education, industry and increasing wealth. The Industrial Revolution in the West also made it rich and powerful. सियासत में करप्शन और दुश्मनी ये बहुत बड़ी वजह थी मुसलमानों के ज़वाल की, जिसने स्टेट्स को कमज़ोर कर दिया था और जिससे मुसलमानों को यूरोपियन के डिपेंडेंट होना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि इनकी तालीम और जो इंडस्ट्रियल इनकलाब था वो मगरिब में वो और ज़्यादा ताकतवर होने लगा. By the end of 19th century, the Muslim world was completely dominated by Europe, which gradually colonized these countries. 19th century के आखिर में मुस्लिम वर्ल्ड कम्प्लीटली यूरोप जो है वो कम्प्लीटली मुस्लिम वर्ल्ड पे गालिब आ गया था. However, the common Muslim people gained an important insight as a result of the political revolution in Europe. Became aware of their rights, although Islam itself guarantees human right in the best possible way. This aspect, underline the word aspect, means pehlu, had been overshadowed by despotic I told you before, muzhib rulers and harsh regimes, both Muslims and non-Muslim. अच्छा, हुआ क्या कि कुछ कॉमन पीपल थे वो इम्पॉर्टेंट मालूमात हासिल करने लगे, जिससे क्या हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि पॉलिटिकल जो इनकलाब था वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा. यानी कि उन लोगों ने जब कुछ इम्पॉर्टेंट मालूमात हासिल की ह्यूमन राइट्स के बारे में मुसलमानों ने, तो वो ह्यूमन राइट्स मुसलमानों के अल्लाह ताला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे पास हैं कि ये ह्यूमन राइट हैं, ये इंसानों के हुकूक़ हैं, वो मुस्लिम्स के लिए भी हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हैं. तो जब वो उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हासिल करने लगे कि हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, मुसलमानों के भी और नॉन मुस्लिम्स के भी, तो उनके आहिस्ता आहिस्ता यूँ इनकलाब आना शुरू हुआ. उनके दिल में एक उभार पैदा हुआ, वो दोबारा से जागना शुरू हुए. स्लोली द मुस्लिम बिगिन टू अवेकन, मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुए. एंड सम ऑफ देम एक्वायर्ड मीन्स हासिल करना, वर्थ वाइल एजुकेशन, और उसमें से कुछ ने जो है वो बहुत एजुकेशन हासिल की. अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ इमर्ज ऑन द सीन एज ए लीडर, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो हमें एज ए लीडर नज़र आई. अच्छा, आपको मैंने एक वर्ड डिस्पोटिक जो सेकंड पैराग्राफ था इस पेज में, वर्ड डिस्पोटिक मीन्स था महज़ब, और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और जो मैंने आपको बताया था उसमें नेक्स्ट क्या था, एंड हार्श रिजाइम्स. अच्छा, इसको रिजाइम्स भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. इसका मतलब होता है हुकूमत, मीन्स होता है हुकूमत. एक तो गवर्नमेंट मीन्स होता है, एक इसके मतलब भी हुकूमत होता है. ठीक है, ओके. सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर, द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों का दोबारा से जागना. इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.